A person's beliefs, attitude, personality, cognition, childhood, background, and goal set in life influence his behavior and social adaptation in the world. And the transfer of these influence majorly happens in an individual's life while parenting and in the course of being parented. Both the processes have their own consequences on a parent as well as a child. And this is an utmost important sphere of growth and development in the society that needs to be constantly checked and addressed to avoid mental health issues and to create healthy, successful, and happy individuals. Today, we will have an in depth discussion to bring out the ill effects of parenting and into light to bring the understand the massive roles and impact of parenting styles on children. I am Dr. Divya Bhasin hosting Let's Talk. A warm welcome to all the viewers. I am extremely pleased to introduce you all to our eminent guest for today's show, Mr. Ashutosh Pruthi. Welcome to the show, Mr. Pruthi. Thank you so much, Divya ma'am, for inviting me on this platform. Hello, friends. My name is Ashutosh Puruthi, and I am serving the society as a parental coach, wherein we enable parents to be effective in their role by using one-on-one coaching and one-on-many workshops. As well as I am working as a life coach. Uh, this is all about me. I have already done already 500 plus workshops in different schools and society. So this is all about me. Mr. Pruthi, you are a life coach, transformation coach, DMIT expert, and most important, a parenting coach. So my first question is based on that only. I just want to seek expert opinion. Like we very often we use a term parenting, perfect parenting. So does this term really exist? Does it mean actually? Is it fine to be used? Yeah, basically, what is the meaning of parenting? Uh, Parenting is basically a process of promoting and supporting the physical, emotional, social, financial, and intellectual development of a child from infancy to childhood. बिना परवरिश परवरिश की बात करेंगे हम बिना परवरिश क्या हम बिना परवरिश के इतने बड़े हो गए क्या हमारे परिवार हमारी फैमिलीज में जो हमारे पेरेंट्स थे क्या उन्होंने हमारी परवरिश अच्छे से नहीं की क्या उन्होंने हमारा सोशली फाइनेंशियली या फिजिकली डेवलपमेंट नहीं किया यस किया है तभी आज हम एक अच्छी परवरिश अपने बच्चों को भी दे पा रहे हैं दैट्स व्हाई वी आर एबल टू गिव बेस्ट पेरेंटिंग और यू कैन से इफेक्टिव पेरेंटिंग टू आवर किड्स basically parenting is changed now parenting is not so easy it's very tough but if we have intent then we can make our parenting easier if I talk about parenting old style parenting and modern style of parenting uh, when I was a child my parents was using carrot and stick kind of parenting you know carrot and stick formula the rule of carrot and stick basically अगर हम बात करें हमारी जमाने की बात करें जब हम लोग बच्चे थे तो my parents used to carrots sometimes carrots when I was doing good work then I was getting any materialized gift and when I was not doing good I was getting stick so that is basically formula of carrot and stick but nowadays parenting has been changed in today's scenario parenting has been totally changed worldwide हम लोग कैरेट एंड स्टिक फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते आप लोगों ने शायद एक बुक स्टडी की हो रीड किए हो वेल्डन पेरेंटिंग द फॉर्मूला ऑफ old parenting or you can say traditional parenting have been changed in today's scenario we are not using traditional parenting we are using modernized parenting we are using only avoid and ignore parenting right अगर आज कोई बच्चा गलती करता है if child is doing any kind of mistake then we are not using stick method we are using only avoid and ignore method if my child is doing good work then I am using avoid parenting kind of things avoid kind of rules
and if my child is doing any mistake, I am ignoring, because गवर्नमेंट ने भी रूल्स बनाए हैं कि आप स्टिक का यूज नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ। इनफैक्ट स्कूल्स में भी आप देखते हैं कि ये फॉर्मूला स्टार्ट हो चुका है। अगर आज के टाइम पे अगर एक बच्चे को थोड़ा सा हार्शली बोला जाए, थोड़ा सा उसके साथ स्टिक यूज किया जाए, तो पेरेंट्स कम टू द स्कूल विद बिग बिग कंप्लेंट्स। एंड गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि वी कांट यूज दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स लाइक स्टिक टेक्निक्स, वी हैव टू चेंज। Yeah. Okay. So my next question actually, sir, because I am a little bit confused. How can parenting control and psychological control on children be kept in check while exercising effective parenting at the same time? I mean, do you feel that being strict and being a good parent, both the things, they can go on simultaneously? Yes. See, effective parenting, what is effective parenting? Like if we are doing, देखो हम लोगों को अच्छा भी करना है बच्चों के लिए, उनके साथ अच्छा भी बनना है, बट सम टाइम वी हैव टू बी स्टिक आल्सो। अगर हम लोग गुडी गुडी बन के रहते हैं अपने बच्चों के साथ, तो हमारा बच्चा भी हमेशा उसी उसी तरह से ढल जाए। देखिए, बच्चा एक मिट्टी की तरह है, गीली मिट्टी की तरह। जैसे हम गीली मिट्टी को मोल्ड करते हैं, जैसे जैसे हम गीली मिट्टी को मोल्ड करते हैं, गीली मिट्टी जब सूख जाएगी तो उसी उसी वही एक फॉर्म ले लेगी, वही एक रूप ले लेगी। सेम बात करें, छोटे बच्चे की बात करें, फ्रॉम 2 इयर्स टू 12 इयर्स बिफोर टीनेजेस, राइट? बच्चा एक गीली मिट्टी की तरह होता है। हम जैसे जैसे बच्चे को मोल्ड करते हैं, बच्चा वैसे ही मोल्ड हो जाता है। अब इफ वी आर डूइंग इफेक्टिवली टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, देन वी कैन से दैट वी आर डूइंग इफेक्टिव पेरेंटिंग। चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात करें, चाहे वो फिजिकल हेल्थ की बात करें, चाहे हम एनवायरमेंटल की बात करें, या हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें, इफ वी आर गुड एट पेरेंटिंग, अगर हम अच्छे से बच्चे का ध्यान रखते हैं, अच्छे से बच्चे की परवरिश करते हैं, दैट इज बेसिकली इफेक्टिव पेरेंटिंग। नाउ आई वुड से कि व्हाट इज इफेक्टिव, क्या है इफेक्टिव? इफेक्टिव मींस कि अगर आपने बच्चे के साथ प्रॉपर वे में, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। एक फार्मर की बात करेंगे हम। फार्मर जब फार्मिंग स्टार्ट करता है, व्हेन ही इज स्टार्टिंग फार्मिंग, सबसे पहले क्या करते हैं, जो लैंड है, उस लैंड पर सबसे पहले हम मिट्टी, हाँ, उसमें फिर हम सीड्स डालते हैं, ठीक है। सीड्स डालने के बाद हम उसमें पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, धीरे धीरे छोटा सा एक पौधा होता है। छोटे से पौधे से फिर हम उसमें थोड़ा सा खाद बीज डालते हैं और अच्छा उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज करते हैं, जमीन को फर्टिलाइज भी करते हैं, और धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता है। एक फार्मर कितना अच्छे से अपनी अपने जो प्लांट्स हैं उनका ध्यान रखता है। सेम वे पेरेंटिंग की बात करें, बीइंग एन पेरेंट, जब हम बात करते हैं अपने बच्चे की, जब हम अपने बच्चे को सोशली बड़ा सोशल होना सिखाते हैं, उसी को इमोशनल, उसके इमोशंस के साथ हम उसको बातचीत करते हैं, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, तो बच्चा धीरे 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 जब बड़ा हो जाता है, जब फार्मर का जब प्लांट भी बड़ा हो जाता है, तो वहां से वो सिर्फ फ्रूट्स मिलते हैं, उससे सब्जियां मिलती हैं। सेम अगर हम अपने बच्चे की परवरिश अच्छी करते हैं, सेम सेम एक फार्मर की तरह ही हम उसको प्रॉपर वे में परवरिश देते हैं, तो बच्चा बड़ा होता है। बड़ा होकर के अगर हमने बच्चे को अच्छी परवरिश दी है जी, बच्चा बड़ा होकर के अच्छा एक पेरेंट बनता है और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकता है। मैं एक छोटी सी कोट के साथ इस कंक्लूड करूंगा इस टॉपिक को, बेसिकली इस पॉइंट को, बेसिकली कि वो ना कच्चा होता है ना अच्छा होता है, जो सच्चा होता है वही तो बच्चा होता है। That's true. But sir, like you have advocated that we need to be strict with the children, but don't you feel that that way children, they will be rebellious, and then it will be very difficult to handle such students once they become rebels? So in that case, whether the parents should be liberal or not? See, आज का जो मेजर प्रॉब्लम है बच्चों का, जी, बच्चे बहुत जल्दी जिद्दी हो जाते हैं। ट्रू। बहुत जल्दी रॉन्ग डिमांड्स करनी स्टार्ट कर देते हैं। धीरे छोटी छोटी डिमांड्स उनकी बड़ी बड़ी डिमांड्स बन जाती है, राइट? इट्स डिपेंड ऑन पेरेंट्स। एक पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को कैसे उसको रिकंडीशन करता है। लाइक अगर मैं आज की बात करूं, टुडे इज द सिनेरियो ऑफ पैंडेमिक, अगर हम कोविड-19 की बात करें, किड्स आर एट होम ओनली, राइट?
they are studying on digital platform, right? सारा दिन फोन देखना, सारा दिन फोन देखने के बाद टीवी देखना, फिर बुक्स को देखना, पढ़ना, स्टडी करना, वो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है बच्चे में भी, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट बच्चे को नहीं मिल रहा और बच्चे धीरे धीरे जिद्दी होते जा रहे हैं, उनका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, राइट? हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का बिहेवियर चेंज हुआ, हम लोग बच्चे को डिसलाइक करना स्टार्ट करते हैं। The main point is we have to dislike the behavior, not the child, right? बच्चे को रिकंडीशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बच्चे को रिकंडीशन करें, रिकंडीशन करने के लिए अगर बच्चा सपोज कोई रॉन्ग डिमांड कर रहा है या उसके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, बच्चा बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुका है, आजकल एक गेम चल रही है पबजी, आई होप यू आर अवेयर अबाउट दैट, है ना? बच्चा बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो चुका है पबजी को लेकर के या बहुत सारी मोबाइल गेम्स को लेकर के, हमें उसको धीरे धीरे उससे निकालना होगा। बच्चे के जो जब बच्चे का बिहेवियर है उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर एकदम से आप बच्चे के हाथ से फोन छीन लेंगे तो बच्चा, देखिए सिंपल सा मेथड है, when he or she is reacting, we need not to act like, बच्चा अगर कोई रिएक्शन करता है तो अगर हम उसी टाइम पे एक्शंस लेते हैं तो कहानी और बिगड़ जाएगी, बच्चा और ज्यादा बिगड़ जाएगा, बच्चे का बिहेवियर और ज्यादा चेंज हो जाएगा। we need not to take strict actions, we have to recondition the child। धीरे धीरे बच्चे से बात करिए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, शेयरिंग कीजिए कि बेटा वाई, बच्चा आप क्यों ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको सिर्फ फोन की ही जरूरत है, फैमिली की जरूरत नहीं है, फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन फोन, राइट? या कोई और बिहेवियर है बच्चे का, किसी और वजह से बच्चे का बिहेवियर चेंज हो गया है, बच्चा किसी वजह से जिद्दी हो चुका है, तो हमें उसके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। बीइंग एन पेरेंट, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को छोड़ देंगे। हमारे बहुत सारे पेरेंटिंग स्टाइल्स भी है, आगे आने वाले टॉपिक पे डिस्कस भी करूंगा पेरेंटिंग स्टाइल। हम अपना पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हमें स्टिक नहीं होना पड़ेगा, हमें फर्म होना पड़ेगा। दोनों पेरेंट्स को, फादर को भी मदर को भी, दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा बच्चे के साथ बैठ करके, शेयरिंग, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बच्चे के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि बच्चा क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से आप सारा दिन फोन को ही यूज करते हैं। हमें फोन की जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करनी पड़ेंगी बच्चे के साथ। अगर हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे या हम उसके साथ कोई डिस्कशन नहीं करेंगे फोन को लेकर के या किसी और जो बिहेवियर बच्चे का चेंज हो रहा है, बच्चा तो ऑब्वियसली उसका बिहेवियर चेंज होगा और बच्चा जिद्दी भी हो जाएगा, बच्चा रॉन्ग डिमांड और ज्यादा भी करेगा, बच्चा हमारे हाथ से निकल जाएगा। True. Just now what you have mentioned, according to a survey also it is done, like during this pandemic, because children, they are not getting some physical activity, so that is why it is proved that children, they are becoming more lethargic and stubborn. So that's true, right? Sir, my next question, because this is just now we have mentioned about this situation, like this crisis that is going on, but otherwise also, like being a parent, we sometimes do such things. So my next question is, consensus is a basic human right, regardless of the age. How do you justify parents taking the liberty of ear piercing, sharing their all sorts of pictures on social media, and even something which is considered inhuman, as using child leashes and all, and very proudly we just exhibit those pictures? But as a child or as a parent, I mean as an expert, what do you feel? Is it right on the parents' part to use such things? बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे बच्चे में कोई भी एक खूबी है, लाइक हमारा बच्चा अच्छे से डांस कर लेता है, या हमारा बच्चा अच्छा सिंगर है, या बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, बट वी डू बेसिकली, हम लोग क्या करते हैं एज ए पेरेंट, हम लोग बच्चे को उसको हम ज्यादा फोर्स करते हैं कि बच्चा हमारे घर, जैसे हमारे घर में कोई फ्रेंड आया, मेरा कोई फ्रेंड आया या किसी की फैमिली में फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मेरा बेटा बड़े अच्छे से डांस करता है, बेटा डांस करके दिखाओ, बेटा आप गाना गा के दिखाओ या आप योगा करके दिखाओ, ठीक है? दे आर नॉट अ शोकेस बेसिकली। सेम अगर हम बच्चों की जो स्पेशलिटीज हैं उनके साथ अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि बार बार मुझे बोला जाता है, एक टाइम पे बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और रही बात सोशल मीडिया की, अगर हम बात करते हैं, सोशल मीडिया पे भी हम बार बार अपने बच्चों के साथ फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं, या हम उनके बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीजें होती हैं जो बच्चा नहीं चाहता कि वो शेयरिंग हो, ऑनलाइन शेयरिंग हो। तो एक एज ए पेरेंट we have to take care for these things. Okay. And just for the sake of comfort of the parents, nowadays we often see
on airports, at railway stations and all, the fathers, they are carrying their small babies using those belts, and children, they are not so comfortable, little ones. Yes. But still parents, they are not even, they don't pay any heed to their comfort. So is it right on the parents' part? See, बीइंग एन पेरेंट, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने बच्चे की केयरिंग नहीं करेंगे? अगर आप कहीं जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे हैं या रेलवे स्टेशन पे हैं, तो यू वुड नॉट लाइक टू केयर योर चाइल्ड? Definitely, sir, but using such things that may cause, maybe causing harm to the children. Little ones, Yes, they cannot express their anguish. So is it एग्री right? विद यू, Yeah. एग्री विद यू, बट समटाइम्स हम लोग कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के, इन चीजों को लेकर के खासतौर पे Okay. हमें उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें इतना ज्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं होना कि बच्चे को आजादी ना मिल सके, वो फ्रीडम उसको ना मिल सके, और वो उसके साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए या उसको मेंटली ये लगे। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, सिंपल सा एग्जांपल है। एक बहुत बड़ा एलिफेंट एलिफेंट जब छोटा एलिफेंट होता है, उसको एक जंजीर से बांधा जाता है, ठीक है? जंजीर से बांधा जाता है, और जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता, हालांकि उस हाथी को नहीं पता कि जंजीर कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत नहीं है, बट उसके माइंड में बैठ गया है कि जंजीर बांधा रहेगा मेरे पाँव में तो मैं निकल नहीं पाऊंगा, राइट? वो धीरे धीरे हाथी बड़ा हो जाता है, उस जंजीर का कोई मायना ही नहीं है उसके पाँव में, ठीक है? हालांकि उसको हार्ड करता है, बहुत ज्यादा हार्ड करता है, उसका कोई मायना नहीं है, लेकिन वो बांधा रखते हैं। किस लिए बांधे रखते हैं? ताकि वो उसके माइंड में ये रहे कि यस, मैं बंधा हुआ हूं, मैं निकल नहीं पाऊंगा। अगर हम यही चीज कंटिन्यूसली अपने बच्चों के साथ भी करेंगे, तो जिंदगी भर बच्चा, वो कहते हैं ना, माँ का पल्लू पकड़ के चलता रहेगा, ठीक है? हमें ऐसी टेक्निक कोई यूज नहीं करनी चाहिए जिससे कि बच्चा ऐसा फील करे कि नहीं, मेरी मदर कहीं है मेरे साथ तो ही मैं सेफ हूं, अदरवाइज मैं सेफ नहीं। हमें इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी बच्चे को। Independent बनाना पड़ेगा. True. यस। Just now, sir, you mentioned about parenting styles, different जी। kinds of parenting styles. Which, according to you, is the best parenting style and why? First of all, ओके। just let me know how many types of parentings are there, because abhi tak to we just feel that being parents, our responsibility is done. So, what are those different types? See, there is 4 kind of parenting styles, right? Okay. अगर मैं थ्योरी की बात करूं, there is 4 kind of parenting style. First is authoritative parenting style, authoritative. Okay. Second is authoritarian. Third is permissive parenting style, and fourth is uninvolved, right? So one by one हम चारों parenting style डिस्कस करेंगे, and then आप ये आंसर करेंगे कि आप ये आंसर खुद करेंगे कि what is the best parenting style, right? Okay. Right. So first parenting style is authoritarian, Yes. right? Authoritarian parenting, जो authoritarian kind of parents होते हैं, they are little ones. They are very clear on rules, right? They have structured environment. They are emotionally distant. They are having high expectations, right? So this is basically authoritarian kind of parenting, right? Now we will discuss about authoritative. पहले मैं अथॉरिटेरियन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल करूंगा। अथॉरिटेरियन जो पेरेंट्स हैं, उनके रूल्स बिल्कुल क्लियर है घर पे कि यस, आपको सुबह 7 बजे उठना है तो उठना है, ठीक है? पावर ओवर, दे आर हैविंग पावर, लाइक दे आर डोमिनेटिंग, राइट? दे आर इमोशनली डिस्टेंट, दे आर हैविंग हाई एक्सपेक्टेशंस कि उनका बच्चा अगर 12th में है तो ही और शी हैव टू टेक 95% मार्क्स मिनिमम, राइट? हाई एक्सपेक्टेशंस, लिटिल वंस। अगर मैं बात करूं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग की, राइट? दे आर, लेट्स टॉक अबाउट इट, हम बातचीत करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम के लिए वो बातचीत करने के रेडी है। दे आर रेडी टू टॉक, दे आर रिस्पॉन्सिव, दे आर फर्म, दे आर लविंग एंड केयरिंग, दे आर डेमोक्रेटिक, दे आर रेडी टू टॉक एट एनी टाइम, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, राइट? दिस इज बेसिकली अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ पेरेंटिंग। वो हर टाइम तैयार रहते हैं अपने बच्चों को प्यार देना, उनकी केयरिंग करना, ठीक है? कंसिस्टेंट रहते हैं, अपनी बात पर कंसिस्टेंट रहते हैं, अपने डिसीजंस पर कंसिस्टेंट रहते हैं, अपनी लाइफ पर कंसिस्टेंट रहते हैं। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। अगर बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, दे डू शेयरिंग एंड केयरिंग काइंड ऑफ फॉर्मूला,
in parenting, right? They are very responsive. This is basically authoritative kind of parenting. Now we will discuss about permissive parenting. What is permissive parenting? Like वो अपने बच्चों के साथ रूल्स नहीं बना पाते, थोड़े बहुत रूल्स बनते हैं, हल्के फुल्के रूल्स बनते हैं. दे आर वेरी लीनियंट काइंड. चलो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, ठीक है. बेसिकली नॉन डायरेक्टिव है वो डायरेक्शन नहीं दे पाते जो डायरेक्शन की बच्चे को जरूरत है. ओके. दे आर नॉट हैविंग एक्सपेक्टेशंस, वेरी लो एक्सपेक्टेशंस. चलो ठीक है, बच्चा अगर फर्स्ट क्लास से पास हो गया तो भी ठीक है, बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो भी ठीक है, बच्चा सक्सेस हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. वी आर लाइक ये बेसिकली जो बिजनेसमैन काइंड ऑफ फैमिलीज हैं, वहां पर ये चीजें हैप्पी मिलती हैं. गो लकी टाइप ऑफ पेरेंट्स ना. यस, ठीक है. दे आर एक्सेप्टिंग ऑल द थिंग्स. ठीक है, बच्चा 12th में अच्छे नंबर ले आएगा तो ठीक है, नहीं तो फादर का बिजनेस है ना, संभाल लेगा. ओके. Right. So this is basically permissive kind of parenting. Now we will discuss about uninvolved. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों की लाइफ में एब्सेंट रहते हैं. They are really uninvolved. They are having a little time. They are basically neglectful, passive, uninterested in the life of children. You are on your own. So Okay. this is basically uninvolved parenting style. So I have discussed all 4 parenting styles: authoritarian, authoritative, permissive, and uninvolved. So now you tell me, what is the best parenting style? Sir, I found second one to be the most apt. Yes, authoritative. Why? Because we need to imbibe the values in the children apart from giving them some warmth in the family. We need to be Yes. very much clear about the instructions as well. But we have to nurture the child as a sapling. Then Absolutely. only I think he can be a perfect, a loving individual. So I feel that second one, that is the most perfect. Yeah, authoritative parenting is the best parenting style. Ji. Even I will share one. If you want to know your parenting style, how you would know your parenting style? Sir, I got to know from the way you described all 4. So I got to know what type of parent I am. Okay, great. That's great. Okay, that's really a nice explanation, sir. Mr. Pruthi, my next question to you is, we have witnessed both kinds of scenarios where children of single parents, even or working parents, have shown considerable success in terms of career and mental health stability. But there are also children who sadly lose it as at all as they grow. This difference can be seen sometimes amongst the siblings too. I mean, let me just explain or elaborate the question to you. Normally, we say that children, those who have single parents, they sometimes don't have the habit of sharing or they don't do well in life. But we have seen exceptions also. So, what do you think? I mean, what exactly is the criteria? Even we see difference in siblings also. See, जो आज का अगर हम बात करें, बच्चा है, उसे हमेशा ये लगता है कि क्या उसके फादर और मदर ने उसकी कैसे परवरिश की है. पहले तो ये जरूरी है कि परवरिश कैसी रही है. दूसरा, उनके फादर और मदर की क्या सक्सेस रही है. राइट. अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, आपने मूवी देखी होगी शायद, छिछोरे मूवी. राइट. उस मूवी में क्या रहता है कि जो बच्चा है वो सुसाइड करने की कोशिश करता है. व्हाई ही वाज अटेम्प्टिंग सुसाइड? बिकॉज एक प्रेशर उसके माइंड के ऊपर है. वो प्रेशर क्या है कि उसके फादर और मदर दोनों सक्सेसफुल हैं अपने करियर में, और देवर टॉपर इन देयर कॉलेजेस, चाहे वो आईआईटी की बात करें या हम जो भी उनका स्ट्रीम रहा था, देवर टॉपर. राइट. वही एक प्रेशर उस बच्चे के माइंड में था कि मुझे भी अपने, अगर मैं ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो क्या मैं वो लाइफ जी पाऊंगा जो लाइफ मेरे पेरेंट्स ने जी है. ठीक है. सो वो एग्जाम में एक बार रह जाता है और ही अटेम्प्ट टू सुसाइड. राइट. सो क्या डिफरेंस है एक अच्छी परवरिश में और एक
पेरेंट्स अगर मैं बात करूं, चाहे वो सिंगल पेरेंट की बात करें या हम पूरे दोनों पेरेंट्स की बात करें, फादर मदर की बात करें, इफ दे आर वर्किंग, वर्किंग पेरेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत है पेरेंटिंग स्टाइल्स को अडॉप्ट करने की, Okay. इफेक्टिव पेरेंटिंग को इफेक्टिवली पेरेंटिंग करने की, बिकॉज दे हैव वेरी लेस टाइम फॉर देयर किड्स, right? They are going to office, both father and mother, they are going to office or they are going to schools, and when they are coming back to home, they are not spending much time with their kids. If they are not spending much time with their kids, they can't handle their kids effectively. एक टाइम ऐसा आएगा जब उन दोनों में जो कनेक्शन क्रिएट हो रखा है, पहले जो कनेक्शन क्रिएट होता है पेरेंट्स बनने पर, कनेक्शन खत्म हो जाएगा, they lose their connections. And connection have to be maintained effectively. So मेरा मानना यही है कि as a parents we have to spend healthy time with our kids. We should separate time. चाहे वो हम रात के डिनर की बात करें, चाहे हम वो संडे की पिकनिक की बात करें, the parents should have good time with their kids, so that उनके जो बच्चे हैं वो ऐसा ना फील करें कि हम किस दुनिया में है, हमारे पेरेंट्स किस दुनिया में है। Okay. But sir, actually my question is कि अगर एक ही घर में अगर if everything depends upon parenting, तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि सिंगल पेरेंट का बच्चा outshines others and even siblings के अंदर भी, मतलब पेरेंटिंग एक जैसी हुई है, but still one child may be an achiever but the other doesn't do so well in life. तो अगर पेरेंट क्या फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्ट करते हैं? वो फैक्टर्स जो है, एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक, राइट? एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक, हर बच्चा अलग है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे बच्चे आपके बच्चे जैसे हैं या आप और मैं एक जैसे हैं, हम भी दोनों बच्चे रहे हैं किसी टाइम पे, लेकिन आपका स्टाइल ऑफ लिविंग अलग रहा है, मेरा स्टाइल ऑफ लिविंग अलग रहा है, आपके पेरेंट्स का मे बी डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल रहा है, मेरे पेरेंट्स का डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल रहा है। अगर हम बात करें एक ही घर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेम सिबलिंग्स की बात कर रहे हैं, एक बच्चा है जो इफेक्टिवली सक्सेसफुल एक पर्सन बन जाता है, दूसरा बच्चा है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता अपनी लाइफ में, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द किड्स, ये आपका क्वेश्चन है ना? जी, राइट। सो हर बच्चे की अपनी क्वालिटी है। आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, उस मूवी में क्या दिखाया गया है कि बच्चों को साइंस पढ़ाने के लिए भेजा गया है, राइट? बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फोटोग्राफी करना ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जो बेसिकली इंजीनियरिंग ही उन्हें अच्छी लगती है, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मस्ती करना अच्छा लगता है, राइट? सो अगर हम दो करेक्टर्स की बात करें, अलग अलग करेक्टर आर रियली डिफरेंट, करेक्टर्स हमेशा डिफरेंस होते हैं। एक करेक्टर अपनी लाइफ में कि दो बच्चे हैं, मैं अगर बीइंग ए पेरेंट की बात करूं, हमारे ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की बात करूं, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में क्या होता था, अगर फादर मदर दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी पेरेंटिंग स्टाइल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनका क्या रहता है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, या तो डॉक्टर बनाओ या इंजीनियर बनाओ, ठीक है, सिर्फ यही उनके माइंड सेट यही है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, राइट? बट समटाइम क्या होता है, जो बच्चे का खुद का एक यूनिक उसका यूनिकनेस है ना बच्चे में अलग से, जी, उसके ट्रेड्स यूनिक से अलग हैं, बेसिकली दूसरे उसके सिबलिंग से अलग है। बच्चे को ये लगता है कि मैं इस चीज के लिए जब बना नहीं, उसके ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है कि आप ये काम करो, जबकि इफेक्टिवली अगर उसका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कराया जाए या उसके साथ एक ऐसा टूल जो हम यूज करते हैं बेसिकली उसका करियर सही सेलेक्ट करने के लिए कि वो किस फील्ड में अच्छा काम कर सकता है, आपने शायद मेरे प्रोफाइल में पढ़ा होगा DMIT, जी, राइट? दैट इज बेसिकली ड्रामेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। उस टेस्ट से ये पता चलता है कि बच्चा बेसिकली किस फील्ड के लिए बना है, उसके अंदर क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, और कैसे उसकी स्ट्रेंथ पर काम किया जाना चाहिए और कैसे उसकी वीकनेसेस पर काम करना चाहिए। तो सिबलिंग्स में जरूरी नहीं है कि दोनों बच्चे एक ही फील्ड में सक्सेस हो पाए या दोनों बच्चे सक्सेस हो पाए। एक बच्चा सक्सेस हो सकता है क्योंकि उसको उसके अंदर जो इनबोर्न टैलेंट है उसका वो अलग है, ठीक है। दूसरा बच्चा सेम उसी फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाता, वो किसी और फील्ड में भी सक्सेस हो सकता है। तो वी हैव टू चेक बोथ ऑफ द पर्सपेक्टिव्स एज एन पेरेंट्स। तो हमें वो चेक करना पड़ेगा कि हमारा दूसरा बच्चा जो साइंस में अच्छा नहीं कर पा रहा वो किस सब्जेक्ट में अच्छा कर पाएगा, फॉर एग्जांपल। Okay,
That means you want to say that the parents, they need to identify the innate traits of their children. Yes, And it's yes, not necessary that the kids in the family, both of them, they should be good in the same field, right? yes. They can Okay. good be they can good on the same fields also, but Can be or cannot be. yes, can be or cannot be. Okay, fine. Okay, right. So my next question is, do you think that there has been a reduction in the threshold of a child's mind to handle stress and pressure today comparatively to the millennial kids? See, mental. Can you please repeat your question once again? There has been, do you notice that there is a reduction in the threshold of a child's mind? I mean, do you feel that the kids nowadays, they are not so competent to handle adverse situations as the kids they used to be? Do you feel as an expert? What's your opinion? सी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको एक ना आजकल की पेरेंटिंग का Hmm. बिकॉज आपने यही क्वेश्चन पूछा कि क्या हमारे बच्चे किसी एडवर्स सिचुएशन में उस प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे राइट Hmm. Hmm. Do मेरा you क्वेश्चन feel that there is a reduction in that level of handling this that stress or to handle the crisis situation? That is what I want to ask. राइट सी आजकल का अगर मैं बात करूं आजकल की इस सिनेरियो नॉट ओनली दिस पैंडेमिक काइंड ऑफ सिनेरियो नॉर्मल इन अगर हमारी रूटीन्स की बात करें छोटा बच्चा है बिल्कुल छोटा बच्चा बेड पे लेटा हुआ है धीरे से नीचे गिर गया तो व्हाट वुड बी द रिएक्शन ऑफ द मदर क्या रिएक्शन रहेगा Very much shocked that mothers, they will, start screaming because it used to happen with me also. Very often my kid would fall down from the bed. So, राइट yeah, ओके आप अपने बच्चों को पार्क लेके जाते हैं वहां sometimes. वहां राइड्स करते हैं राइड्स से अगर बच्चा गिर जाए तो क्या करते हैं हम लोग Sir, if you ask me, I actually ignore at that moment. I let the child get up himself. I let her manage the situation herself. I don't react right now because I feel that otherwise she will not be able to handle stress if I'll be with her every time. right absolutely see what is the difference between the child from a village and the child from a city I urban or think the children, those who belong to rural background, they are more robust. yes They keep on falling and getting up, and the parents, they are not so much, I don't say that they are lacking in emotions or something, but yes, they don't care much as compared to the city kids. Parents here, they pamper the kids more. This is absolutely my perspective. see एक सर्वे हुआ था सर्वे में ये था कि उस टाइम पे आईक्यू टेस्ट किए गए थे उन लोगों के उन बच्चों के उन सक्सेसफुल लोगों के जिन लोगों ने बड़े अच्छे ग्रेड्स लिए स्कूलिंग में ठीक है Okay. और लाइक 95% 97% 98% 99% राइट फिर एक सर्वे किया गया उन आईक्यू टेस्ट किया गया उन लोगों का जो लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं या सक्सेसफुल वर्किंग है राइट चाहे वो जॉब में है चाहे वो बिजनेस में है Field में. ठीक है किसी भी फील्ड में है Hmm. सक्सेसफुल है सो उनके टेस्ट जब किए गए थे तो उनके टेस्ट से ये निकल के आया था कि जिन बच्चों के स्कोर्स ज्यादा है राइट Hmm. जिन बच्चों के स्कोर्स ज्यादा है दे आर गुड ओनली इन स्टडीज दे आर नॉट डेवलप्ड इन ऑलराउंड्स की अगर हम बात करें सभी एस्पेक्ट्स की बात करें तो दे आर नॉट डेवलप्ड ठीक है Okay. जिन बच्चों के स्कोर्स आए 80 75 70 they are more successful in education they are more successful in the field of business right और अगर हम बात करें they are successful in their life they Life have skills they were having better. बिकॉज बिकॉज झेल पाएगा ठीक है कितना वो अपने आप को स्टेबल रख पाएगा कितनी एडवर्स सिचुएशंस में अपने आप को हैंडल कर पाएगा या रख पाएगा वो डिपेंड करता है बच्चे की हमने परवरिश कैसे की है क्या हमने इसको पूरी लाइफ पैम्परिंग दी है क्या हमने पूरी लाइफ बच्चे को सिर्फ यही बोला है कि नहीं बच्चा यू आर द बेस्ट यू आर द बेस्ट यू आर द बेस्ट Hmm. हमने बच्चे को आईना नहीं दिखाया
राइट। अगर हमने बच्चे को आईना नहीं दिखाया तो हम खुद कभी बच्चे को ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो एडवर्स सिचुएशंस में अपने आप को किस तरीके से हैंडल कर पाएगा। बीइंग एन पेरेंट वी हैव टू मोल्ड आवरसेल्फ। हमें खुद को चेंज करना होगा अगर हम अपने बच्चे में चेंज लाना चाहते हैं। राइट। दैट इज द रीजन बेसिकली। अगर हम एक अर्बन बच्चे की बात करें और हम एक रूरल बच्चे की बात करें तो जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर हाईली एनर्जेटिक। वेदर दे आर वो एजुकेशन में भी अच्छे हैं, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, और वो हर चीज में चाहे हम उनसे फार्मिंग करवा लें, दे आर गुड एट फार्मिंग। चाहे हम उनसे बिजनेस करवा लें, दे आर गुड एट बिजनेस। इंटेलेक्चुअल उनका हमारे हम अर्बन्स की बात करते हैं हमारे से ज्यादा डेवलप होता है। बस सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है कि उनको उनको गाइड करने वाला कौन है। अगर उनको एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटोर मिल जाए तो दे आर बेटर देन अगर हम अर्बन चाइल्ड्स की बात करें, चाहे वो किसी भी सिचुएशंस की बात करें, किसी भी यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो दे आर बेस्ट। आप एक चीज देखिए, जितने भी स्पोर्ट्स कोटे के अंदर अगर हम बात करते हैं, जो लोग गोल्ड मेडल्स लेकर के आते हैं, ठीक है, दे ऑल आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड्स। ट्रू। दे आर गुड एट एजुकेशन आल्सो। मैं देख रहा हूँ जब उनके इंटरव्यूज होते हैं, दे आर टॉकिंग लाइक इतने फ्लुएंट हैं, वो बातचीत करने में इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, इतना हमारा एक अर्बन का बच्चा नहीं होता। हालांकि मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा अर्बन के बच्चों को भी, दे आर आल्सो गुड, बट डिपेंड ऑन पेरेंटिंग कि कैसी परवरिश हमने दी है अपने बच्चों को। अगर हम हर टाइम टेम्परिंग करेंगे, यस वी हैव टू यूज पॉजिटिव वर्ड्स ओनली विद आवर किड्स, ओनली पॉजिटिव वर्ड्स, वी शुड नॉट यूज नेगेटिव वर्ड्स, राइट? Okay. Sir, like 4 skills are there: IQ, EQ, SQ, and AQ. So, what should be done to develop all the 4 skills simultaneously? Otherwise, as a parent, as teachers, we just keep on chasing IQ only. But as just now you mentioned that other skills also need to be developed. So, what is the way out? See, अगर हम लोग सिर्फ बात करेंगे एजुकेशन की, एजुकेशन हम देखिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। चलिए, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप एक पेरेंट्स भी हैं, राइट? आपका बच्चा स्कूल से आएगा, व्हाट वुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड? आप अपने बच्चे से पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे? स्कूल से आया, बच्चे ने बैग रखा, फटाफट से किचन में आपके पास खड़ा हो गया, बिकॉज़ यू आर प्रिपेयरिंग योर लंच, right? So what would be your first question to your child? And my first question is always, I mean, it's a pet question. I always ask her, how was your day? Okay, right. But my question would be different. Okay. Right? मैं ये नहीं पूछूंगा बच्चा आपका दिन कैसा रहा। मेरा क्वेश्चन एक ही होगा, बच्चा आज कितना फन किया आपने, कितना एंजॉय किया स्कूल। यही क्वेश्चन होना चाहिए। हाउ वाज योर डे? अब हम उस डे की बात करें तो उस डे में सबसे पहला क्वेश्चन एक पेरेंट्स का, एक बच्चे के दिमाग पे एक ही बात आएगा कि मम्मा मुझसे यही पूछेगी कि बेटा आज एकेडमिक्स में क्या रहा। बेटा अगर आप बात करें फन की, देखिए शेयरिंग इज केयरिंग, मेन फॉर्मूला, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर जब तक आप अपने बच्चे के साथ शेयरिंग नहीं करेंगे कि आपने अपने एकेडमिक्स में या अपने स्कूल लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में कितना फन किया, बच्चा आपसे उतना फन कभी शेयर नहीं करेगा। यू हैव टू शेयर कि बच्चा, हमने अपनी लाइफ में जब हम स्कूल में थे तो हम लोग कैसे अपने टीचर्स के साथ फन करते थे, हम लोग कैसे रिसेस में फन करते थे, कैसे हम लोग गेम्स खेलते थे, ठीक है? आपने ये नहीं बोला कि कैसे हम पढ़ाई करते थे, स्टडीज करते थे। जस्ट टॉक अबाउट फन। देयर इज अ बेसिकली लॉजिक। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? अगर आप जब फन की बात करेंगे, बच्चे को सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या सबसे अच्छा बच्चे को स्टडीज लगती है? नहीं, नहीं। ठीक है। एक फोर्स, देखिए दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो सेल्फ लर्नर होते हैं, उनको स्टडीज अच्छी लगती है। एक होते हैं फोर्सफुल, जिनको हम लर्निंग्स कराते हैं ताकि बच्चा डेवलप हो सके अच्छे से, राइट? लेकिन दोनों ही बच्चे कहीं ना कहीं उनको ये रहता है कि हमें फन भी चाहिए। हम अगर बच्चे के इंटरेस्ट की बात करेंगे बच्चे के साथ, तो बच्चा अपने इंटरेस्ट की बात हमारे साथ भी करेगा। हमने अपनी बातें जब बच्चे के साथ शेयर की कि हमने कितना फन किया स्कूल में, कितना हमने बच्चे को, हमने स्कूल में फन किया, हमने अपने टीचर के साथ फन किया, अपने फ्रेंड्स के साथ फन किया, बच्चा भी ही और शी विल स्टार्ट शेयरिंग कि हाँ हमने ये फन किया, हमने ऐसे डिस्कशन किया, राइट? सो आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बच्चा आपने किया क्या,
ठीक है। अब इस क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन था कि बच्चे का आईक्यू के अलावा बच्चे का ईक्यू और बच्चे का अदर एस्पेक्ट्स जो अदर स्किल्स हैं वो भी डेवलप होने चाहिए। यस, दे हैव टू बी डेवलप्ड। अगर हम बच्चे से सिर्फ एकेडमिक्स की बात करेंगे तो बच्चे का एकेडमिक्स पे ही ध्यान जाएगा। हम सोचेंगे कि बच्चे का आईक्यू अच्छा होना चाहिए, आईक्यू अच्छा होना चाहिए, आईक्यू अच्छा होना चाहिए, हमारे माइंड में सिर्फ ये बात चलेगी। हम बच्चे के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। इसके अलावा बच्चे को ट्यूशन करवा रहे हैं, बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन करवा रहे हैं, बच्चे को बेस्ट स्कूल दे रहे हैं एजुकेशन के लिए, बच्चे के हम अदर स्किल्स के ऊपर तो काम ही नहीं कर रहे। आप एक चीज को देखिए, बच्चे के अंदर एजुकेशन स्किल्स तो है ही है, अगर बच्चे के पास इंटरव्यू स्किल्स नहीं है, बच्चे के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो बच्चा अपनी लाइफ में कहां सक्सेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ट्रू। तो वी हैव टू डेवलप आवर किड्स एट वेरियस स्किल्स। आजकल की डिमांड है स्किल्स की, नॉट एन एजुकेशन। आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ पेरेंटिंग कोच, आई एम जस्ट ग्रेजुएट इन मास कम्युनिकेशन, ओके। राइट। बट मेरे पास स्किल्स है कि मैं पिछले 10 साल से 15 साल से पेरेंटिंग पे सेशंस ले रहा हूं, तो वो मेरे स्किल्स हैं। दिस इज नॉट माय एजुकेशन। Okay, great. Sir, I want to ask, there are many numerous systems like daycare, schools, training, early and later intervention programs, etc. for children, right from the start to become a better individual. But comparatively, there are a very few such assistance for parents to be and for to be parents. Why is that? And what kind of assistance could be provided for the parents to be better parents? I mean, for children, there are so many things from the very beginning, like after they cross their infancy, they are sent to daycare programs, to schools, everything there go. But as far as parents they are concerned, we don't have any such centers where parents they can be groomed. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दिव्या मैम, देखिए, अगर हमें एजुकेशन, अभी हमें अगर हमें डॉक्टर बनना है, so we have to do certain degrees, we have to do BMS, we have to do MBBS और we have to do MD, right? अगर हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो एजुकेशन है वो पूरी करनी पड़ेगी। हमें इंजीनियरिंग करनी है तो हमें इंजीनियरिंग के लिए एजुकेशन लेनी पड़ेगी। देयर इज लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन मार्केट। जहां पर फैशन डिजाइनिंग करनी है तो फैशन डिजाइनिंग की एजुकेशन दी जाएगी, बट देयर इज नो इंस्टीट्यूशंस ऑफ पेरेंटिंग, राइट। बहुत से लोग अब इस फील्ड में एज ए पेरेंटिंग कोच अपना करियर भी स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज आर रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, राइट। इंडिया में अभी ये स्टार्ट हुआ है, बट अगर हम बात करें यूके की, यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, वहां पर ऑलरेडी पेरेंटिंग कोचिंग इज अ प्रोफेशन, जहां उस प्रोफेशन में पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है कि हाउ यू हैव टू डेवलप योर किड्स, बिकॉज द प्रॉब्लम इज विद इन द पेरेंट्स ओनली। हमारे बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि डिसलाइक द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, नॉट द चाइल्ड। हम बच्चे को डिसलाइक करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा नहीं है, हमारे पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा अच्छा नहीं है, दे आर बैड, दे आर यूजिंग बैड वर्ड्स फॉर आवर किड्स। वी शुड नॉट डिसलाइक द चाइल्ड, वी शुड डिसलाइक द बिहेवियर ओनली। और इस बिहेवियर को ठीक करने के लिए पेरेंटिंग क्लासेस लेना, पेरेंटिंग पे काम करना। आप देखिए, एक अच्छा पेरेंट वही बन सकता है जिसे थोड़ी बहुत एजुकेशन, जो अच्छी एजुकेशन ले सके, एटलीस्ट कम से कम यूट्यूब पे सर्च करे। बहुत सारे पेरेंटिंग कोचेस हैं, परीक्षित सर हैं, मेरे भी कुछ वीडियोस हैं जहां पर आप देख सकते हैं, या कंसल्ट करे पेरेंटिंग कोचेस जो है, पेरेंटल कोचेस जो है, उनके साथ डिस्कशन करें कि आप कम से कम हमें ये बताइए कि हम अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कैसे कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा अपनी पेरेंटिंग को लेकर के, अपने पेरेंटिंग स्टाइल्स को लेकर के, हमें अपने पेरेंटिंग बिहेवियर्स को लेकर के। वी वांट टू रियली ग्रो अप आवर किड्स, वी वांट टू डेवलप आवर किड्स वेरी इफेक्टिवली, सो वी हैव टू बी ग्रोन एज एन पेरेंट, वी हैव टू। Okay, but before that, I think parents they need to be aware, because parents they believe that just by giving birth to children, so their task is done. They are already parents now. So first of all, they need to be aware that being biological parents, that is not enough. See, बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। पेरेंटिंग की बात करते हैं तो पेरेंट्स इज बेसिकली वी कॉल मैनेजिंग पेरेंट्स, राइट।
मैनेज, हु आर द मैनेजिंग पेरेंट्स, जो भी अपने बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, बेसिकली इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, दे आर बेसिकली मैनेजिंग पेरेंट्स। बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो बुआ भी हो सकती है, चाचा भी हो सकते हैं, एक टीचर भी हो सकता है, एक आया भी हो सकती है, राइट। बट अगर हम बात करें मैनेजिंग पेरेंट्स की, हु आर द मैनेजिंग पेरेंट्स, वी टॉक एवरी टाइम मैनेजिंग पेरेंट्स, बेसिकली managing parents. Who is basically managing their kids effectively? They are basically managing parents, right? So parenting should be effective. अगर आज हमने अच्छी पेरेंटिंग नहीं की, हमने आज अच्छी परवरिश नहीं की, जिस दिन बच्चा हमारे हाथ से निकल गया, टीन एज से निकल गया, हम देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। ना तो बच्चा, हम अपने अपने बच्चे को मैनेज कर पाए अच्छे से, ना ही वो बच्चा इन फ्यूचर अपने बच्चों को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। True. Great. So with this, I come to my next question. Could you please summarize for us what and how positive parenting should be? I mean the whole thing. I want you to summarize, please. What is exactly some of the tips I want you to give to our audience? What exactly positive parenting should include? राइट। बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करूंगा, हम लोग बात करते हैं केयरिंग की। सबसे पहले पेरेंट शुड बी वेरी केयरिंग, राइट। हाउ ही और शी कैन बी ए केयरिंग, लाइक अगर हम बात करें तो वी आर यूजिंग 5 C's ऑफ पेरेंटिंग, 5 C's, राइट। 5 C's की बात करते हैं तो वी हैव टू डू 3 C's, like we have to be very emotional connect with our kids, we have to be very communication हमारे जो है वो अच्छे होने चाहिए, communicable, compliments. First of all, we have to make a good connect with our kids. How we can make a good connect, right? First, हमारा बच्चे के साथ जब हम बातचीत करते हैं, हमारा पोस्चर कैसा हो, हमारा आई कांटेक्ट कैसा हो, हम अपने बच्चों को कितना आजादी दे रहे हैं बोलने की, हम अपने बच्चों को कितना अच्छे से सुन पा रहे हैं, ठीक है, और हम अपने बच्चों की जो कन्वर्सेशन है उसको कितना इंटरप्टिंग करते हैं या कितना कंटिन्यूसली सुनते हैं। वी शुड हैव अ वेरी गुड इमोशनल कनेक्ट विद आवर किड्स। और एक अच्छा कनेक्ट क्रिएट करने के लिए, इमोशनली कनेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें एक अच्छा पोस्चर रखना होगा अपने बच्चों के साथ, एक आई कांटेक्ट अच्छा रखना होगा, हमें बच्चों को बोलने की आजादी देनी पड़ेगी हमारे साथ, सबके साथ नहीं, हमें बच्चों को सुनना पड़ेगा अच्छे से। वी हैव टू लिसन आवर किड्स वेरी केयरफुली। और जब बच्चा कोई बात कर रहा है तो हमें उसकी बात को कभी भी इग्नोर नहीं करना, वी हैव टू लिसन द थिंग्स प्रॉपर्ली, राइट। फर्स्ट। सेकंड, कॉम्प्लीमेंट्स। जब देखिए छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, दे ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू द फैमिलीज। छोटे छोटे जो हमारे घर के काम होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे हमारे, हमें हर कंट्रीब्यूशन में बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव वर्ड्स, वी हैव टू यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स। यस, वेल डन माय सन, वेल डन माय गर्ल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट स्टेप्स टुवर्ड अ लॉन्ग टर्म गोल, लाइक हमें एक लॉन्ग टर्म गोल बना करके चलना है कि बच्चे को हमने, जब भी बच्चा कोई अच्छा काम करता है हमें उसे कॉम्प्लीमेंट देना है जरूरी, हमने कुछ पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, बड़े जरूरी है, ठीक है। हमने बच्चे को कॉम्प्लीमेंट नहीं देना, हमने बच्चे की क्वालिटी ऑफ वर्क को हमने उसको कॉम्प्लीमेंट देना है, ठीक है। थर्ड, वी हैव टू बेसिकली डू प्रेज योर चाइल्ड, जस्ट डोंट ओवरडू इट, राइट। हमने अपने बच्चे को हमेशा प्रेज देनी है, बच्चे को टाइम देना है, बच्चे के साथ शेयरिंग करनी है, बच्चे के साथ केयरिंग करनी है। प्रेज द एफर्ट्स नॉट द रिजल्ट्स, हमने बच्चे के जो एफर्ट्स है उसको हमने हमेशा प्रेज करना है, रिजल्ट्स को उसकी प्रेज कभी नहीं करना, चाहे रिजल्ट्स कुछ भी हो। प्रेज द प्रोग्रेस नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, Okay. राइट। थर्ड इज कम्युनिकेट, वी हैव टू कम्युनिकेट वेल विद आवर किड्स। अगर हम अपनी बात बच्चों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमारे बच्चे, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हम अपने बच्चों को आज उनकी अच्छी बातें नहीं सुनेंगे या उसको अच्छी बातें नहीं बोलेंगे तो फ्यूचर में हमारी जो अच्छी बातें हैं बच्चे उनको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं,
right? We have to well communicate with our kids. Listen with closed mouth. बच्चे के साथ हमें बिल्कुल धीमे से, प्यार से उसके नजदीक जाकर उससे बात करना. Okay. रेगुलरली शेड्यूल फैमिली मीटिंग्स और टाइम टू टॉक्स. हमें अपने बच्चे के साथ रेगुलरली एक मीटिंग शेड्यूल्स करनी है. लाइक अगर बच्चे की हम बात करें, हम अकॉर्डिंग टू द एज, अगर बच्चा हमारा छोटा बच्चा है तो रेगुलरली हमें, अगर बच्चा हमारा 6 साल 8 साल का है तो हमें बच्चे के साथ हफ्ते में एक बार बैठना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए. बच्चा क्या तुम्हें अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता. बच्चा थोड़ा सा और बड़ा है, फिर उससे हम शेयरिंग करेंगे, बच्चा स्कूल में कितना फन किया, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया आपके साथ. ठीक है, एक कम्युनिकेशन डेवलप करेंगे बच्चे के साथ. जब तक उनके साथ मीटिंग्स नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन डेवलप नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों के साथ, बिलीव मी, हम बच्चों के साथ बिल्कुल सही नहीं करेंगे. वी हैव टू डेवलप कम्युनिकेशन विद आवर किड्स, राइट. ये तो 3 चीजें जो है हमने करनी है. अब जो चीजें नहीं करनी है हमें, 2 थिंग्स. मैंने 5 चीज की बात की. सबसे पहला मैंने डिस्कस किया आपसे, सबसे पहले मैंने कहा आपको कि हमें बच्चे के साथ कनेक्ट करना है अच्छे से जी. बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्स देना है, और फिर हमने बच्चे से कम्युनिकेट करना है. These 3 C's we have to do with our kids, and 2 C's जो हमने नहीं करनी है. फर्स्ट इज कंपेयर. हमने बच्चे को, अपने बच्चे को या किसी के भी बच्चे को, हमने कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है. वी शुड नॉट कंपेयर आवर किड्स विद एनीवन. एवरी चाइल्ड इज यूनिक. हर बच्चा यूनिक है अपने आप में. अगर हम उसके साथ कंपेरिजन करना स्टार्ट कर देंगे किसी और के साथ, तो हम जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे अपने बच्चे साथ, उसको जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. तो ऑलवेज, बिकॉज अगर हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं बच्चों के ऊपर. उसके बच्चे को स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, लोअर सेल्फ एस्टीम, लोअर सेल्फ वर्थ, स्टे अवे फ्रॉम सोशल सिचुएशंस, राइट. बच्चा अपने आप में घुटने लग जाएगा, बंद के रह जाएगा. ठीक है, इसलिए कभी भी कंपेयर नहीं करना अपने बच्चों को. Second C is basically criticize. Never criticize your kids. Never ever criticize your kids. Okay. Affects their attachment style. बच्चे को आप क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, बच्चे का आपके साथ जो अटैचमेंट लेवल है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा. बच्चा आपको सुनेगा ही नहीं, बच्चा आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा. जिस दिन बच्चा अपने पेरेंट्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पेरेंट्स. शेम कॉम्प्लेक्स आता है बच्चे के साथ. बच्चा शाय फील करने लग जाता है. लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. बच्चे को जितना आप क्रिटिसाइज करेंगे, बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा. बच्चा अपने आप को कहीं प्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा. डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल वाउंड्स एंड ओवर सेंसिटिविटी. बच्चा खत्म हो जाएगा हमारा. जितना ज्यादा हम क्रिटिसाइज करेंगे, हम अक्सर क्या करते हैं, यार ये तुम्हारे बस का है नहीं, बच्चे तुम्हारे बस का है नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, यू आर नथिंग. ये बातें जब सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे के बैठ जाएंगी, बिलीव मी, आप बच्चे की रिकंडीशनिंग नहीं कर पाओगे. सो स्पीक ओनली पॉजिटिव वर्ड्स विद योर किड्स. आई एम ऑलवेज सेइंग, कम्युनिकेट पॉजिटिवली विद योर किड्स, डोंट क्रिटिसाइज योर किड्स. सो ये 5 चीज है, या फॉर्मूला अपना लीजिए. आप अपने बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन करेंगे, उनको जस्टिफाई करेंगे, और एक बेस्ट पेरेंटिंग, एक इफेक्टिव पेरेंटिंग आप अपने बच्चों को दे पाएंगे. Okay. Mr. Pruthi, right now you have stressed on the need of giving compliments. I mean, reinforcement in the form of some good words or something. And every time we should encourage the child. But does that mean that we should not show her or him the real picture if he does some mistake? So being a parent, isn't it our responsibility to correct him? If we keep on encouraging them, where will they get to know about their weaknesses, their gray areas? See, मैंने अभी जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने पेरेंटिंग की बात की, अबाउट मॉडर्नाइज्ड पेरेंटिंग और ट्रेडिशनल पेरेंटिंग. टुडेज पेरेंटिंग इज बेसिकली, अगर हमारा बच्चा कोई गलती करता है, हमारा पूछने का स्टाइल, बच्चे की गलती पूछने का स्टाइल हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे बच्चे से पूछ रहे हैं कि उसने क्या गलती की है. Okay. अगर आप देखिए, सिंपल सी बात है, 2 सिबलिंग्स हैं, घर पे वो खेल रहे हैं, और एक वास्ट है टेबल पे रखा है, और गलती से वो हाथ लगा और वो नीचे गिर गया. तो हु इज द कल्प्रिट बेसिकली? और मदर आई, फटाफट से चिल्लाना शुरू कर दिया, ये क्या किया, इतना महंगा वास्ट था, तुमने तोड़ दिया, ब्ला 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 ब्ला. उन्होंने बिल्कुल चिल्लाना शुरू कर दिया. क्या इम्पैक्ट आएगा बच्चे के ऊपर?
हमने क्रिटिसाइज ही किया ना बच्चे को। अब वास टूट गया, क्या वो जुड़ सकता है वापस से? नहीं जुड़ेगा। हमने चिल्लाने की बजाय अगर हम बच्चे को ये बोले कि बच्चे आप खेलिए, जरूर खेलिए, लेकिन प्लीज टेक केयर कि ये महंगी चीजें हैं, टूटने ना। प्यार से भी तो उस बात को किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, हम तो लड़ना शुरू कर देते हैं कि इतना महंगा वास था, इतना मुश्किल से मैं एंटीक पीस लेकर के आई थी और तुमने तोड़ दिया। वी हैव टू स्पीक सॉफ्टली। देखिए बच्चा, मैंने पहले भी आपको बोला, गिल्ली मिट्टी की तरह है, जैसे हम उसे मोल्ड करेंगे बच्चा वैसे ही बनेगा। डिपेंड अपॉन अस कि हम कैसे उस बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, हम कितना उसके साथ पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितना उसके साथ नेगेटिविटी उसके साथ हम बिहेव कर रहे हैं। नेगेटिव बिहेव नहीं करना है, बच्चे को समझाइए। सिर्फ देखो, मेरी एक कोट थी, मैंने आज से 2 साल पहले लिखी थी कि बच्चे को समझाने से ज्यादा बच्चे को समझना जरूरी है। हम किस मोड में रहते हैं? समझाने वाले मोड में। बच्चे नहीं ये करो, बच्चे नहीं वो करो, बच्चे ऐसे करो, बच्चे वैसे करो। बच्चा क्या चाहता है, हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। We have to understand the child. We have to understand the kids. No, I agree with you completely. But just on a lighter note, I mean, I'm curious to know about it. Like few years back, I mean, when we were kids, then no such thing was there like parenting and all. And the only thing that used to correct us was a stick only. Yes, तो yes, yes. तो अभी ऐसा क्या हो गया है कि इन बच्चों को उतना ज्यादा हमें पेरेंटिंग और इन सब चीजों के ऊपर बात करने की जरूरत? मैं ना आपको कैरेट एंड स्टिक का फॉर्मुलेशन कहां से हुआ था इसकी हिस्ट्री में बताना चाहूंगा आपको। ओके, राइट। एक बुक है, मैं आई वुड लाइक टू गिफ्ट यू दैट बुक, वेहेल्डन पेरेंटिंग। वेहेल्डन पेरेंटिंग जिस ऑथर ने लिखी है, उन्होंने जहां से इसका बेसिकली आपने सुना है कि एक्रोबैट्स जो डॉल्फिन्स के एक्रोबैट्स होते हैं, डॉल्फिन्स को सिखाया जाता है कि आपने जंप करना है और आपको कुछ दिया जाएगा खाने को। राइट। वो कैरेट एंड स्टिक, बेसिकली कैरेट एंड स्टिक मेथड यूज किया गया था उसमें। अगर डॉल्फिन ने अच्छे से जंप किया तो डॉल्फिन को मटेरियलाइज थिंग, यानी उसको खाने के लिए कुछ दिया जाता था। ठीक है। अगर उसने अच्छे से जंप नहीं किया तो उसको स्टिक दी जाती थी, मारा जाता था। ओके, ठीक है। यही हमारे साथ भी होता था जब हम बच्चे बचपन में, लेकिन सिर्फ स्टिक ही होती थी। ठीक है। राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं चेंजेस की, चेंज कैसे हुआ? कैलिफोर्निया में एक रामू शाह करके एक बेसिकली थे, एक जिनका एक्रोबेट्स का ही था वो, बेसिकली उनके पास भी डॉल्फिन्स थी और वो उनके साथ गेम्स करते थे, लोग आते थे देखने के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम था वो, लोग आते थे देखते थे, उससे उनको इनकम होती थी। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनको रियलाइज हुआ कि अब ये ना गेम बोरिंग हो गया है, तो क्यों ना कुछ एक्साइटेड किया जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो किलर व्हेल्स हैं उनसे ये एक्टिविटी कराई जाए। किलर व्हेल्स, डॉल्फिन कितनी छोटी होती है और किलर व्हेल कितनी बड़ी होती है? बिल्कुल। क्या किलर व्हेल के साथ हम कैरेट एंड स्टिक वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे? अगर व्हेल को हम स्टिक दिखाएंगे तो क्या व्हेल हमें खा नहीं जाएगी? बिल्कुल, है ना। तो वहां पर ये बेसिकली फॉर्मूला यूज किया गया कि अवॉर्ड एंड इग्नोर। अगर व्हेल ने अच्छा किया तो उसको अवार्ड मिलेगा, अगर उसने अच्छा नहीं किया तो उसे इग्नोर करेंगे। अगर हमने स्टिक दिखाई तो वो हमारे ऊपर आ जाएगी। तो उन्होंने वहां पर ये फॉर्मूला स्टार्ट हुआ, अवार्ड एंड इग्नोर। राइट। सो आज की जो पेरेंटिंग है, अवार्ड एंड इग्नोर की पेरेंटिंग है, हम स्टिक यूज नहीं कर सकते। Okay, that means we were dolphins and kids today, they are killer whales. Yeah, absolutely. Right. Thank you so much, Mr. Ashutosh, for imparting your knowledge and experiences with us. I'm sure that there are parents and parents to be who would really want to introspect and improvise themselves to be better parents and to stabilize their relationship with their children. Thank you once again for being an amazing guest for today's show. And thank you, all our viewers, for being a part of the discussion. We'll be back again with more introspective topics to unlearn and learn for the betterment of humankind. Until then, stay safe, stay happy.